A very good morning to everyone. Today we are going to discuss a few questions of the chapter Current and Electricity which have been asked repeatedly in the board's exam. वो questions जो board exam में frequently पूछे जाते हैं, they are FAQs of chapter 3 of NCERT. Let's discuss these questions in this video. So first question says, you have to define current density. उसकी SI unit बतानी है और ये बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है. ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी इज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मैंने बताया था कि कंडक्टर में से अगर हम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उसमें से नॉर्मली यूनिट एरिया में से कितना करंट पास कर रहा है वो हम बोलते हैं करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट area. So we will define it as electric current So current density is defined as the electric current flowing normally per unit area of cross section. इसकी SI यूनिट पूछी जाए तो सिंपल है, इट इज करंट अपॉन एरिया. करंट की यूनिट होती है एम्पियर और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. सो इट्स SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. नाउ I told you that I is equal to J vector dot A vector. J vector is the current density vector, so it is a vector quantity. So current density is a vector quantity. बेसिकली हमारा करंट स्केलर क्वांटिटी होता है. हमने नॉर्मली यहाँ पर क्यों यूज किया है? बिकॉज वी आर टेकिंग द कॉम्पोनेंट विच इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया. हम वही कॉम्पोनेंट करंट में इंक्लूड करते हैं. नाउ let's move to the second question. Define resistance of a conductor. Write its SI unit. And what are the factors on which resistance of a conductor depends? So how can you define the resistance of a conductor? You know R is equal to V upon I from Ohm's law. तो अगर आप resistance define करना चाहते हो तो उसमें क्या लिखोगे? Resistance of the conductor is the ratio of potential difference applied across the conductor and the current flowing through the conductor. ये भी लिख सकते हो और ये भी definition लिख सकते हो कि it is the obstruction to the flow of current through a conductor, that is known as the resistance of a conductor. SI unit क्या होती है इसकी? It is ohm. And on what factors the resistance of a conductor depends? आप बताओ कितने factors पे resistance of conductor depend करता है? I told 4 factors. First is length of the conductor. Second is area of the conductor. Third is the nature of material. किस मटेरियल का बना है कंडक्टर. एंड फोर्थ इज द टेम्परेचर. और अगर पूछा जाए कि रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करते हैं लेंथ पे, जितनी लेंथ ज्यादा लेंथ हो उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, जितना ज्यादा एरिया हो उतनी ही कम रेजिस्टेंस होती है. तो लेंथ से डायरेक्टली रिलेटेड होती है रेजिस्टेंस और एरिया से इनवर्स रिलेटेड होती है. टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है फॉर अ मेटालिक कंडक्टर. नाउ we'll move on to the next question. Define resistivity of a conductor, write its SI unit, and on what factors does resistivity of a conductor depend? So resistivity of a conductor, is defined as the resistance of a conductor of that material with unit length and unit cross sectional area. तो मैंने आपको बताया था resistivity हम कैसे define करेंगे. It is simply the resistance of a unit cube of that material जिसकी dimensions 1 है, length भी 1 है और area of cross section भी 1 है. Because R is equal to rho L upon A. L की वैल्यू 1 रख दी, A की वैल्यू 1 रख दी, then resistivity comes out to be equal to resistance. SI unit क्या होती है इसकी? मैंने बताया था SI unit of rho is ohm meter. And on what factors the resistivity of a conductor depend? किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? सिंपल, जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करती, खाली नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question says resistance of a conductor increases with rise in temperature. Why?
जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी रेजिस्टेंस कंडक्टर की क्यों बढ़ती है? आई टोल्ड यू कि एक कंडक्टर के अंदर जब हम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देर आर वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ आयनाइज्ड कोर्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स थर्मल मोशन में रैंडमली मूव करते हैं. सो ये कंटिन्यूसली कोलाइड करते हैं और अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं. कंटिन्यूसली दे अंडरगो कोलिजन, और जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इनकी एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से ये बहुत फास्ट एक कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, जिससे जो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में टाइम होता है वो कम हो जाता है. इसकी वजह से टाउ कम होने की वजह से हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, सिंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ. आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ. So this is the answer. Now let's move on to the next question. So the next question says, if a wire is stretched to double its original length without loss of mass, what will be its new first resistivity and second resistance? हमारे पास एक वायर थी, हमने इसको पुल किया एंड से, तो ये वायर लंबी हो गई. तो हम इसमें से कोई मास लॉस नहीं हुआ है, मटेरियल तो सेम रहा है इसके अंदर. तो हमें बताना है क्या चेंज होगा रेजिस्टिविटी में और रेजिस्टेंस में. क्या बता सकते हैं रेजिस्टिविटी में क्या चेंज होगा? देयर विल बी नो चेंज इन रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल तो चेंज हुआ ही नहीं. सो देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टिविटी, बट देयर विल बी सम चेंज इन रेजिस्टेंस. उसे कैसे निकालेंगे देखते हैं. लेट अस सपोज इस वायर की लेंथ थी L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A. अब मैंने इसको डबल लेंथ बना दी, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 2L. बट आई डोंट नो इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नाउ. उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं वॉल्यूम 1 को वॉल्यूम 2 के बराबर रखूंगी, क्योंकि मास का लॉस तो हुआ नहीं है, तो जितना वॉल्यूम पहले वायर का था उतना ही वॉल्यूम अब भी उसका रहेगा. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू, ये इनिशियल था, फाइनल क्या है? ए डैश इंटू 2L. तो इससे मैं ए डैश निकाल सकती हूँ. ए डैश विल कम आउट टू बी ए अपॉन 2. इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया है? हाफ हो गया है. नाउ अगर मैं देखूं इनिशियल रेजिस्टेंस कितनी थी, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए. फाइनल रेजिस्टेंस कितनी है खींचने के बाद? रो L डैश अपॉन ए डैश. दैट इज रो तो सेम रहेगा, मटेरियल तो सेम ही है. L डैश इज ट्वाइस and area, new area is a by 2. So this is equal to 4R. इसका मतलब जो रेजिस्टेंस हो जाएगी इट विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस. जैसे हमने वायर को खींचा उसकी रेजिस्टेंस पहले जितनी भी हो अब वो हो जाएगी 4 टाइम्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Two materials, silicon and copper, are cooled from 300 Kelvin to 60 Kelvin. What will be the effect on their resistivity and what will be the, okay, this same question is repeated. Simple. What will be the effect on their resistivity? तो अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में मैंने ग्राफ बनाया था कुछ इस तरीके से. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी कम होती है मटेरियल की. तो टेम्परेचर अगर हमने कम किया तो इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी. सो इट मींस रेजिस्टिविटी सिलिकॉन के केस में रेजिस्टिविटी बढ़ती है. अगर मैं कॉपर की बात करूं, मैंने कॉपर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया था. फॉर दिस इज फॉर कॉपर. तो इस केस में एज आई इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस. तो अगर मैं टेम्परेचर कम कर देती हूँ तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है. तो कॉपर के केस में रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी. सो दिस विल बी द आंसर. यू कैन इवन ड्रॉ द ग्राफ्स एंड टेल दैट सिलिकॉन के केस में, और यू कैन इवन से सिलिकॉन के केस में अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव होता है, और कॉपर के केस में अल्फा दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव होता है. तो इसलिए सिलिकॉन में रेजिस्टिविटी बढ़ती है और कॉपर के केस में रेजिस्टिविटी कम होती है एज आई डिक्रीज द टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 7 सेज, एक्सप्लेन व्हाई कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीन आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स. ध्यान से सुनना, ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ अपने नोट्स में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीन क्यों यूज करती हूँ मैं अपने लैब में जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं वो बनाने के लिए. सिंपल है, दे हैव अ स्मॉल
पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा। इनका अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम होता है, तो इवन विद अ सिग्निफिकेंट चेंज इन टेम्परेचर their resistance or resistivity don't change much। तो अगर हमारे लैब में टेम्परेचर बढ़ जाता है, भाई गर्मी हो गई, जैसे से हम वायर में से करंट पास कर रहे हैं, तो हीटिंग इफेक्ट होगा जूस लॉ ऑफ हीटिंग की। अगर हम जूस लॉ ऑफ हीटिंग देखें, देन हीट विल बी प्रोड्यूस इन द वायर, तो जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बट देयर रेजिस्टेंस शुड नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, अदरवाइज आवर रिजल्ट्स विल बी अफेक्टेड। दैट्स वाई हम स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स किसके बनाते हैं? कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन के, जिनका अल्फा हैज स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। Let's move on to the next question. Question number 8 says, two metallic wires are connected first in series and then in parallel. हमारे पास दो वायर्स थी, इन दोनों वायर्स को मैंने पहले सीरीज में कनेक्ट किया और फिर मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया। लेट अस सपोज इनकी रेजिस्टेंस थी R1 और R2। तो प्लॉट ऑफ रेजिस्टर्स, plot of VI graph showing is shown for both cases. Which one represents a parallel combination of resistors? सबसे पहले तो देखो यहाँ पर IV ग्राफ है। IV ग्राफ में देखा जाए, अगर y एक्सिस पे I है, then slope is equal to 1 upon R, because V is equal to IR, तो I by V is equal to 1 upon R, so this is the slope। जिसकी स्लोप ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम है। और हमें पता है कि अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसके केस में रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में इट विल बी इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस इज लेसन देन बोथ R1 एंड R2, तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज से कम वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की, एंड फॉर लेसर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस द स्लोप विल बी ग्रेटर, सो इट मीन्स दिस इज द parallel combination and this is the series combination. I hope this point is clear to all of you. Now moving on to the next question. Show that current density J is related to the applied electric field vector E vector by the relation J is equal to sigma A. So you have to prove this relation. तो इसको हम कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक तरीका बताती हूँ। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। लेट्स रिमूव दिस वेक्टर राइट नाउ। करंट डेंसिटी, लेट्स टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड्स ओनली। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। नाउ आई नो दैट एक्सप्रेशन फॉर करंट इज A/N/E ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन A। A से A gets cancelled, it's equal to N/E/Vd. Now, what is the expression for drift velocity? It is E tau upon m. Now, this is equal to N/E square E tau by m. Now, I know the expression for resistivity as well. It is equal to m upon N/E square tau. So, the expression for conductivity will be reciprocal of resistivity, that is N/E square tau by m. So can I replace N/E square tau by m in this with sigma? So let's do this. So I'll get sigma times E, or we can write J vector is equal to sigma E vector. That's how we have proved the relation. Moving on to the next question. Question 10 says, figure shows a plot of current I flowing through a cross section of wire versus time. Use the graph to find the charge flowing in 10 seconds through the wire. So if I need to find the charge, simple, I know the formula I is equal to dq upon dt, or the amount of small amount of charge that has flown is equal to I dt. This can also be understood as the charge flown through the conductor is equal to area under this curve. ये कर्व जो है, इसके अंदर जो एरिया है, अगर हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना चार्ज फ्लो किया है। सो एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर एक ट्राइंगल है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, तो देखें एरिया कितना आता है,
ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ